So, good evening, friends. Welcome on this third day of Technology Week webinar series 2.0. Where week first and last 2 days as well. Now we are on third day. We are exploring various software in terms of practice management, accounting, auditing tool. Yesterday we have seen. Also, we are seeing income tax, TDS, and other support services like confirmation and various such as. So it's a great journey so far in this technology week. Many are taking benefit also as offered by the partners company who are taking part in this webinar week. So it's a great journey. This we are also jointly doing with Jain Chartered Accountant Federation, which is very near to my heart as well. We had wonderful panelists with us today. Panelists, sorry for my voice. We have a wonderful panelist today with us. We have a President, Jain Chartered Accountant Federation, Mumbai, CA Pradeep Kapadia, sir. Sir is also immediate past President at GST, GST Net, Maharashtra, GST PM. So basically, it's a great association from the past so many years for the indirect tax practitioners. We have CA Hirachand Bafnaji, Vice President at Jain Chartered Accountant Federation. We welcome you, sir. We have today's speaker and panelist with us, Sujit Roy, Head Customer Support at Simplify Practice, Amay Gujarji also as a consultant, CA Rakesh Kumarji as a host, functional consultant at Hostbook. We welcome you all. And now would like to request President JCF Pradeep Kapadia, sir, for welcome address and to address to all the attendees. So over to you, sir. Good afternoon and Jai Jinendra to everyone. It gives me immense pleasure in welcoming you to this third day session of Technology Week webinar seminar, a joint initiative of Connectease and JCF. Yes, we had 2 days, an excellent presentation by excellent presenters. Yes, they have given us so many tips on how to make your practice to make it more simple. It is like gains from pains. That sort of a thing that they have. It is what we say as gains from pains. And today we have with us, and I think many of our viewers or who are also who have joined us must have taken the benefit of that. Today we have Mr. Amay Gurjar. He is a consultant at Simplify Practice. That is what I say. You all are really making it really simple. And today, when we will hear you, you will make it more simpler. So thank you very much for being with us. And our next speaker is CA Rakesh Kumar, the functional consultant in Hostbooks Limited, and Sujit Roy Chaudhary, the head customer support head Hostbook Limited. They will be speaking on this thing on Hostbook, an integrated all-in-one cloud hostbook and based application for accounting, GST, e-way bill, TDS, income tax, etc., etc. So without wasting much of your time, and let me remind all the viewers the benefit that the schemes that we have been launched, so you must be taking the benefit of those. So have a happy learning and happy afternoon. Thank you very much. God bless. Thank you so much, Pradeep sir. Would like to request now Hirachand Bafna sir to say a few words for the importance of technology in the profession. Over to you, Bafna sir. Thank you, Virag bhai. I thank Pradeep bhai for the kind words, and I thank you for inviting me on this platform. Technology, I am into practice for 35 years. जब हमने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं था. हम हाथ से रिटर्न भरते थे, हाथ से रिटर्न बनाते थे और हाथ से ही देने जाते थे. इवन इनकम टैक्स ऑफिस में भी हम हाथ से ही देने जाते थे. ऑर्डर भी है तो हाथ से लेने जाओ, ऑर्डर लाना है तो भी लेने जाओ. तो वो जो था वो सिचुएशन हमने देखी हुई है. लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो गई है, एवरीथिंग इज नाउ इन ऑनलाइन. और इस कोविड टाइम में तो और भी ज्यादा ऑनलाइन हो गया है. उसकी इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है
क्योंकि हमारा जो कंप्लायंस है अब पूरा शायद वर्क फ्रॉम होम हो रहा है सबके लिए, तो टेक्नोलॉजी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके लिए हम अपने प्रैक्टिस को कैसे सिंपलर ढंग से कर सकते हैं, उसके बारे में अभय जी आज हमको, अमय जी आपको अपने को बताने वाले हैं कि प्रैक्टिस को सिंपल करके और कैसे हम उसके कंप्लायंस वगैरह पूरा कर सकते हैं। उसी तरह अपने होस्ट बुक वाले हैं जिनका जो प्रोग्राम है वो हमको अच्छे ढंग से फास्ट कंप्लायंसेस वगैरह में कैसे हेल्प कर सकता है ताकि हम कंप्लायंस नहीं चूके, क्योंकि इस कोविड टाइम में एक भी कंप्लायंस अगर हम चूक जाते हैं तो क्लाइंट को पेनल्टी लग जाती है। तो जो कंप्लायंस वाला उनका पोर्शन है वो भी हम प्रैक्टिस वालों को बहुत काम आएगा। प्लस जो अभय जी बताने वाले, अमय जी बताने वाले, वो हमको सिंप्लीफाई कर देंगे कि उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राकेश जी का वो प्रोग्राम और अभय जी की एडवाइस दोनों मिलके हमारी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर देगी। और मेरे जैसे जो लोग हैं जो अभी तक ज्यादा जो टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, वो आज मेरे ख्याल से पूरा प्रोग्राम सुन के टेक्नोलॉजी सेवी हो जाएंगे। और इसी प्रोग्राम में जैसा विराग भाई ने बताया था कि होस्ट बुक वालों ने अपने को कुछ डिस्काउंट भी दिया है, और अमय कुमार जी में भी अपने को कुछ डिस्काउंट दिया है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका पूरा यूज कीजिएगा। थैंक यू विराग। Thank you, Vafna ji. I just want to mention here that Vafna ji has given wonderful presentation at 3 o'clock meeting as well. You can watch that on our Facebook page at Jain Chartered Accountant Federation Facebook page. We have done that live session as well. So with this, now would like to request to Amay ji to start the first presentation of today. Sure. Good afternoon, everyone. Hi, this is Amay from Simplify Practice team. First of all, I would like to thank Mr. Pradeep Kapadia sir and Virag Shah for organizing this wonderful informative event, and also his team. Thank you for organizing this event as well as inviting us to this event. So let me just share the screen now and let's start. Can you just confirm whether my screen is visible right now? The Simplify Yes. Practice is visible over here? Yes. Sir. Okay, fine. All right. So to begin with, just a small clip. Sir, we are not able to see that video. You can start the presentation, sir. No, your video is not visible. Amay ji, you can start the presentation. Screen is visible right now, right? Is my screen visible? You start the presentation. Video is not visible. Please start the presentation, sir. My screen is visible. I'm not just right now playing the video. I'm just sharing my presentation screen. So
So is it Introduction visible? on Simply Practice is visible. Please start. Fine, fine. Okay, okay, okay. Thank you. Okay, so Simplify Practice, it's a work management software, and we had started this software from 2018 onwards. 2018 October, actually, we had signed a MOU with ICI, which gives us the exclusive rights to market our software with ICI. And under that agreement of MOU, we had told them that we would be giving the software free of cost for 2 years in order to promote their digital scheme. That is, they wanted to promote the digitization of the office work. So we have tied up with ICI, wherein the software is free from 2018 October onwards till 2020 October, right? And after that, it would be chargeable. Currently, our company, the name of the main company is Vritti Solutions Private Limited. We are into the BFI sector. Also, we are providing softwares like ERP, CRM, WMS, HRMS software solutions. We have started this from 2007 onwards, and we are currently having a pan-India presence. And we are currently serving as a consultants to SMEs, private companies, and government sector companies. Right. So you can just go on our website afterwards if you want to check vritti.co.in. That's our website, wherein we have defined all our products, as well as we have also defined the list of clients we are currently having, which some of them includes Parley and India Post, SBI, right? Our company strength is currently 400 plus employees, and other than Simplify Practice, it's just a product. Other than Simplify, there are 10,000 different clients we are currently handling. The company has been awarded many accolades, and few of them are like ET. ET is something which is quite common amongst the CA fraternity people. So ET Brand Equity Award we had received in 2019. Also Indian ISV Award 2019 we had received for best software solutions of the year. Also you can see on our website vritti.co.in. So now coming to the main question, what is the reason why we should go for Simplify Practice right now? So now it's quite evident that we are going through this pandemic situation, and it is very uncertain when exactly the vaccine would come in the market and when the office would start in a normal way, right? We have to work from our homes. We have to manage our clients, manage our employees through our houses, right? And so now it is the need of the hour that we have to, start with some kind of a work management software wherein we can manage our clients, we can manage our day-to-day activities, day-to-day work, and manage our whole team. We are having 20, 30, on an average, every CA firm is having 10, 20 articles. So how to manage their work, right? So for doing that, right now, the need of the hour is a work management software, right? And during last 6 months, we have been having quite a good growth. Like the pandemic, it's a very bad situation, but for work management software, it has been like a boon, because now people who were not so much tech savvy, they are now realizing the importance of work management software, because they have to manage their work through through their home. And around 25% of client growth we have seen in last 3 months, as well as the activities which have been created by employees, that has been increased from on an average 6 to 8.5 every week, right? So there's quite of interest that has been now reflected by all the CA fraternity people in the product. Now, what is Simplify Practice? I've already mentioned that it's a practice management tool. We also provide a mobile application which is available absolutely free with this web version, and wherein you can track the location of your field employees. If they are going at the client location, you can track their location, you can track their in and out time. That can be done, right? You can do the profitability report check. That is, if you want to know that whether the project you are handling is profitable to you, that is how much of the cost has been incurred and what is the bill you are charging. So accordingly, you can even generate a profitability report from the software, right? So it also helps you with the end-to-end solution. It gives you a synchronization and automation, wherein you can check multiple things. You can check your client work, you can check assignment wise. That is, if you want to just check
whether GST return filing, how many activities are pending right now, so that you can avoid mainly the people what they face the problem is they forget 2 or 4 clients and ultimately the C has to bear the fine due to he was not able to properly monitor the work, right? So this can be avoided if you use work management software like Simplify Practice. Also, you can do lead management wherein you want to manage any client who is coming in your company. Amayji, there is some issue with your audio. We are not able to understand. If you can switch off your camera and then start, then it will be better. Amayji, if you can switch off your camera, that will be better. Amayji, we are not able to listen you. अरे वो अमर जी का आवाज नहीं आ रहा है, उनको फोन करके बोलो तो कैमरा बंद करे फिर आवाज आएगा. आवाज नहीं आ रहा है. Anurup ji, are you there? Anurup ji? Anurup ji, are you there? All are requested to please wait. Amay ji may be relog in immediately.
way of complying the current need of the hour. So today with me will be CA Rakesh ji. Me and him will be displaying our product and explaining the important benefits through which we can come out of this situations and manage our accounting and compliances very easily. Just like sir has, Virachand sir has told that COVID, before that, long back, they used to file it through their online working and offline working, hand notes, ITR, and all these things. Just a long way we have come. Nowadays, this is the technology which we are using right now. We are talking face to face, and we are using the benefit of one of the way of technology. So yes, we have come a long way to using the technology in our day-to-day life, and it's the need of the hour. We should start using this technology to make the life of our professional CAs very easy, so that the compliances can be happened in a click of mouse and no penalties and fines should be there for the clients, and any harassment should not be there while filing. So we are coming upon with this. So if you allow me, so I can go ahead. Can you confirm, Virajji, so that I can start the presentation, or else we will be giving the opportunity to Mr. So they have not yet joined, I think. Amayji, have you joined? Amayji, are you there? Yes, and now I've again joined. I'm really sorry that there's some power failure we're facing. Heavy rains in Maharashtra. So please yeah. start your presentation. I will share the screen. Sure, sure. Please don't on your camera. Otherwise, again, the Okay. issue will be there. Thank you, Sujit Okay, ji. fine. We'll take your session after immediately after the Amayji's presentation. Okay. Amayji, we are not able to listen you. Right. So fine. So Amayji, there is issue. We cannot continue. with my Sujit, you please take over and please start your session. Sujit ji, you please continue and start the session. Sujit ji, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Please share your screen and start the session. My company is Hostbook Limited, which providing all-in-one accounting software related to TDS, e-way bill, accounting, GST. So we will be telling you a lot more about that. Mr. Kapil Rane, who is also CA, he is our founder and chairman of Hostbook Limited, who has the dream long back to make a small and very powerful software for accounting, reporting, and compliances, which will definitely going to save the time and cost of the small and medium scale business persons. Our product launched, which happened in 2017, our first product which was launched in USA, as we are happening to work in US and India. So here you can see our first product was launched in accounting USA and at the same time TDS India. In 2018, we again came with three more software, which is accounting Indian software, GST, e-way bill. All these three came in 2018. In 19, we launched our income tax and POS software. Coming to the timeline of our product launch, from starting 2016, where we started our work on this software,
we have come along, as I just shown in another presentation, just one before slides, that we launched USA accounting. We first acquired our first customer in 2018, and our first channel partner, we have joined hands with our partners in 2018 only, with our mobile applications also been launched in 2018. In 2019, we have been awarded with Most Promising Entrepreneur Award, ET, and the Education Conclave Award also, with reaching the 50 plus customer base and 100 plus channel partners across India. Our core team, which is consists of our CEO, Mr. Amit Mukherjee, CA Biswajit Mishra, who is our Chief Development Officer, and Sudipta De, our Vice President Sales. Postbook is few of the companies in cloud-based who are providing all-in-one under one software, all-in-one compliances related to accounting, GST, TDS, e-way bill, payroll, POS in under one software, so that all these things can be covered under cloud. So this is the need of the hour, the cloud, which is very, very required nowadays to manage their work from anywhere, anytime. So we are the few companies which are providing this. Currently, as a customer base talking, we have 51,000 current customer base plus and count going on, and CA is 10,000 plus registered with our software. As we have already informed in our brochure also that we are providing the software for CA Pertinity for 3 years, 3 users, unlimited companies free. And for those who are joining this webinar session and registering with us, will be provided 25% discount in the first 72 hours of the intimations. Today we are going to focus on few of the very benefits which Postbook is providing through its cloud technology for the ease of accounting, ease of compliances. One of which will be our core banking posting, how it's coming, how reconciliation is done, how with ease we are integrating the data from other external sources to our software, how the automation intelligent dashboard is helping us, how we are going to complete our compliance circle in one go. Means you are going to just post your entry in one accounting software module, but your TDS, your GST, your e-way bill, all we think will be combined and covered. As well as your ITC reconciliation related to QA and purchase matching. These all things will be covered up with the demo, which we are going to just now start by Mr. CA Rakesh ji. Rakesh ji, sir, can you please share the screen with Rakesh ji? He will be demonstrating. Viraj ji? Yes, Rakesh ji is there, na? No, Rakesh Yes, ji sir, is I there. am there. He will be displaying the product. So can you please share it? Rakesh ji, if your net connected is good, you can come on screen as well. You can turn on your camera. So I need to turn my camera and then my screen will be visible. Screen as of now is with Sujit ji. Should I transfer to you? Yes, Yes, you sir, can please. transfer. Okay, now all you can see my screen. Yes, yes. Please continue. Yes. Okay. Okay, thank you सुजीत सर. बेसिकली जब भी आप होस्टबुक्स में आप ज्वाइन करते हैं, जब भी आप साइन अप करते हैं, तो फर्स्ट पेज आप सेक्शन देख रहे हैं, ये कस्टमर पोर्टल है, जिसको हम कस्टमर पोर्टल बोलते हैं, जहाँ पे आपके जितने भी बिजनेसेस हैं, सारी बिजनेसेस यहाँ पे लिस्ट होती हैं. एंड इस कस्टमर पोर्टल पे मेन हाईलाइट क्या है कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि किसी बिजनेसेस के आगे जीएसटी नंबर रेड है और किसी पे ग्रीन है. तो ये जस्ट ये शो करता है कि किस बिजनेस का जीएसटीआईएन वेरीफाइड है और किसका अनवेरीफाइड है. ये डेटाबेस मैच करता है जीएसटी पोर्टल से और उसको वेरीफाई करता है. देन इसके अंदर आप बेसिकली आप ये देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं.
आप ये देख सकते हैं कि जो आपके क्लाइंट्स हैं, आप उसका एक क्विक ओवरव्यू आपको मिलता है कि किस क्लाइंट का लेटेस्ट कौन सा जीएसटी फाइल हुआ है, एंड वो आप अपनी डैशबोर्ड पे देख पाते हैं। अगर आप उसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो देन हमने यहाँ पे इसको एक ऑप्शन दिया है जीएसटी फाइलिंग स्टेटस। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप सभी के क्लाइंट्स का अपना स्टेटस देख सकते हैं कि किस क्लाइंट से किस मंथ का जीएसटी रिटर्न फाइल हो गया है या नहीं हुआ है। देन यहाँ से आप उस क्लाइंट्स की बेसिकली आपको एक व्यू मिलता है कि कौन से क्लाइंट्स का मेरा कंप्लायंस पेंडिंग है और कौन से क्लाइंट्स का मेरा कंप्लायंस नहीं पेंडिंग है। देन हम वापस डैशबोर्ड पर जाते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। मैं आपको डैशबोर्ड पे लेके जाता हूँ। सेकंड हाईलाइट है यहाँ पे इस डैशबोर्ड पे कि आप यहाँ से अपने क्लाइंट्स जैसे कि अपनी जो सीए प्रैक्टिस है एंड जो भी हमारे एडमिन होते हैं वो अलग अलग यूजर असाइन करते हैं उनके रोल के बेसिस पे। देन यहाँ से आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ से उसके रोल को असाइन कर सकते हैं। रोल असाइन करने में यहाँ पे आपको कंपनी वाइज आप रोल असाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन वाइज रोल असाइन कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन के उससे भी डिटेल्ड आप उसके राइट्स डिसाइड कर सकते हैं कि उसको क्या बेसिकली राइट्स देने किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। अगर उसको रिटर्न्स के राइट देने तो उसे रिटर्न देख सकता है, अगर रिपोर्ट्स के राइट देने तो सिर्फ वो रिपोर्ट देख सकता है। देन यहाँ से आप उसके राइट्स को और इन डेप्थ डिफाइन कर सकते हैं। वापस जाते हैं डैशबोर्ड पे। हाँ जी। देन इसके बाद एक मेन हाईलाइट यहाँ पे डैशबोर्ड पे ये है कि होस्टबुक्स एप्लीकेशन जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो होस्टबुक्स एप्लीकेशन आपको 10 GB एक फ्री क्लाउड स्पेस देता है, जिसमें आप अपनी डे टू डे या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी बिजनेस से रिलेटेड या आपके किसी क्लाइंट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो जस्ट लाइक ड्रॉप बॉक्स और गूगल ड्राइव आप अपने यूजर अकाउंट में इसको ऑन क्लाउड 10 GB स्पेस यूज करके इसको स्टोर कर सकते हैं और कभी भी किसी भी समय इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ से आप अपने खुद के फोल्डर बना सकते हैं और ये फोल्डर, ये जो आपको 10 GB स्पेस मिलता है, ये डेफिनेटली हेल्प करता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं जो हमें क्लाइंट वाइज मैनेज करने होते हैं, तो आप क्लाइंट वाइज यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि एंड जब आप बिजनेसेस के अंदर जाएंगे तो ये सेम जो फंक्शनैलिटी है क्लाउड स्टोरेज की, हर बिजनेस के अंदर आपको हर ट्रांजेक्शन के पास एक आइकन मिलता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप वहां पे कर पाते हैं। वहां से आप अपने क्लाइंट की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सेव कर सकते हैं, उसको एक प्रॉपर प्लेस दिया हुआ है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट का, वहां से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। वापस डैशबोर्ड पे आते हैं। देन इसमें एक लास्ट ये है कि आप यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना मतलब बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट जीएसटी नंबर इनपुट करना है एंड जब जीएसटी नंबर आप इनपुट करते हैं सारी डिटेल्स ये ऑनलाइन फेच कर लेता है। आप उनकी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं, आपका जीएसटी भी यहीं से वेरीफाई हो जाता है एंड देन आगे आपके जितने भी बिजनेसेस जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो सारी ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो जाती हैं एक तरीके से। तो यहीं से आपका इनिशियल बिजनेस क्रिएशन के समय ही आपका जीएसटी नंबर वैलिडेट हो जाता है एंड जितने भी स्टेटस होते हैं उस जीएसटी से रिलेटेड, रिटर्न फाइलिंग स्टेटस है या कोई भी कंप्लायंस स्टेटस है, आप वहां पे उसको उस समय कोई ग्लिचेस नहीं आती हैं उसको देखने में। ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको डिफरेंट आइकन मिल रहे हैं। ये एप्लीकेशन के आइकन है कि आप एक क्लाइंट के किस एप्लीकेशन में मूव करना चाहते हैं। जैसे सुजीत सर ने बताया कि होस्टबुक्स ऑल इन वन प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शन। इस ऑल इन वन के अंदर आप यहाँ देख पाएंगे कि एक क्लाइंट का जो डेटा है वो मतलब एक ही क्लाइंट के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन का आइकन यहाँ दिया हुआ है। एक ही लॉगिन से आप सभी क्लाइंट के डिफरेंट एप्लीकेशन में एंटर कर सकते हैं। देन जब आप अकाउंटिंग एप्लीकेशन में जाते हैं तो क्योंकि होस्टबुक्स का अकाउंटिंग एक मेन सॉफ्टवेयर है जिससे जो सभी कंप्लायंस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करता है। देन अकाउंटिंग एप्लीकेशन के अंदर भी आपको सारी एप्लीकेशन को एक्सेस करने का ऑप्शन मिलता है। आप अकाउंटिंग एप्लीकेशन से ही सारी एप्लीकेशन में मूव कर सकते हो, वो मैं आपको दिखाऊंगा डेमो के अंदर आगे। अब अकाउंटिंग एप्लीकेशन में हम लोग जाते हैं। जब आप अकाउंटिंग एप्लीकेशन में आते हैं फर्स्ट टाइम, आपको एक डैशबोर्ड पे आप लैंड करते हैं और वो आपके बिजनेस का डैशबोर्ड है। ये बिजनेस का डैशबोर्ड आपको ये दिखाता है कि आपके बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन है उसका एक क्विक
एक ओवरव्यू और जो कि बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको देता है कि जितने भी आपने सेल्स इनवॉइसेस इशू कर रखे हैं उस सेल्स इनवॉइसेस का अब तक का क्या स्टेटस है, कि कितना अमाउंट रिसीव हो चुका है, कितना अभी भी बाकी है और क्या ओवरड्यू हो चुका है। ये हर एक ट्रांजेक्शन पे, हर एक डेट पे जो भी फंक्शनलिटी सेट करी हुई है उसके बेसिस पे अपडेट होता है। देन आप डेली आप इसको अपने मोबाइल पे, लैपटॉप पे, अपने टैबलेट पे आप इसको देख सकते हैं अपने इनवॉइस का स्टेटस। आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस चार्ट के अंदर माउस ओवर पे भी आप देख पाते हैं कि मेरे मई मंथ के अंदर 7 इनवॉइसेस वॉइड कर दिए थे एंड 16 इनवॉइसेस ओवरड्यू हैं, 8 अवेटिंग पेमेंट है। आप यहाँ से उसको नेविगेट कर सकते हैं। आपको हर एक इनवॉइस का बेसिकली आपको एक स्टेटस मिलता है कि हर एक इनवॉइस की क्या एग्जैक्टली स्टेटस है। जैसे आप यहाँ देखेंगे कि कुछ इनवॉइसेस अवेटिंग अप्रूवल है, हर एक इनवॉइस का स्टेटस बेस उसको मेंटेन किया हुआ है। हर एक इनवॉइस का आपको ये भी बताता है कि किस इनवॉइस कितने दिन से पेंडिंग है। अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको सिंपली उस इनवॉइस पे क्लिक करना है एंड आप अपने इनवॉइसेस को डायरेक्टली मेल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को मेल कर सकते हैं, उसको एसएमएस कर सकते हैं, आपको उसको रिमाइंड करा सकते हैं। एंड ये मैं फोल्डर जो मैंने आपको दिखाया था क्लाउड मैनेजमेंट का, इस फोल्डर पे आप इसको यूज कर सकते हैं। जहां से आप अपनी फाइल को अपलोड कर सकते हैं किसी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। देन वापस आते हैं डैशबोर्ड पे। सेम मैनर में आपको बिल्स का एनालिसिस मिलता है, आपके जितने भी परचेजेस हैं उसका एनालिसिस मिलता है कि कितना अभी ओवरड्यू है, कितना पेंडिंग है। एंड आपको एक क्विक आपको बैलेंस शीट का स्टेटस मिलता है कि आपके बैलेंस शीट की एग्जैक्ट क्या पोजीशन है। आप माउस ओवर पे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी देख सकते हैं एंड क्या आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। ये सब आप उसको आपको डैशबोर्ड पे मिलता है कि किस मंथ की क्या प्रॉफिट है या फिर क्या लॉस है या क्या रेवेन्यू है। आपके टॉप परफॉर्मिंग कॉन्टैक्ट्स कौन से हैं, कॉन्टैक्ट्स इन द सेंस कि आपके इसमें लिखा है कि टॉप कॉन्टैक्ट्स बाय सेल्स, यानी कि आपके टॉप परफॉर्मर कस्टमर कौन से हैं जो आपसे ज्यादा ट्रांजेक्ट कर रहे हैं। उसी तरीके से आपके टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक और इन्वेंट्री कौन सी है, वो आपको एक एनालिसिस आपको यहाँ मिलता है। एंड आपके पास एक ऑप्शन है, होस्टबुक्स आपको देता है कि कोई भी अकाउंट अगर आप उसको वॉच लिस्ट करना चाहते हैं देन आप उस अकाउंट को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कभी भी उस अकाउंट में जो भी अपडेट आता है देन आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी अकाउंट को वॉच लिस्ट कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक नोटिफिकेशन सेक्शन है। कोई भी इनवॉइसेस या जैसे भी आपके एडमिन राइट है या जो भी जिस तरीके से आपने लॉगिन किया है, सपोज एडमिनिस्ट्रेशन किया है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव करते हैं और कोई यूजर डॉक्यूमेंट को बनाता है तो उस तरीके की नोटिफिकेशन आपको डैशबोर्ड पे ही मिलती है। एंड कोई भी इनवॉइसेस पेंडिंग है देन आपको क्लिक करना है, आप उस इनवॉइसेस पे जाके उसको अप्रूव कर सकते हैं। सो बेसिकली मैं इस डैशबोर्ड पे इसलिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रेडीमेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है जो आपके बिजनेस डिसीजंस के लिए यूजफुल है। एंड हम लोग इस प्रेजेंटेशन में बार बार हम लोग ये फोकस करने वाले हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान बना रहा है या फिर कैसे आप अपने एफर्ट्स को कम कर सकते हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट पे लेके जाऊंगा, कैश एंड बैंक पे, जो बैंकिंग मॉड्यूल है होस्टबुक्स का, वो आपको कैसे हेल्प करता है। आज के समय में जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग कुछ क्लाइंट्स हैं जो कुछ क्लाइंट्स की अकाउंटिंग भी कई बार मैनेज करते हैं, तो वहां पे सीए के पास इतना समय नहीं होता है कि उसको किस तरीके से कम टाइम में हम अकाउंटिंग उसकी कर सकते हैं। तो बैंक मॉड्यूल किसी भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे कैसे हम उसको हैंडल करते हैं, हम बैंक को यूजर के पास ऑप्शन होता है कि अपने बैंक को अपने ऑनलाइन बैंकिंग से इंटीग्रेट कर सकता है। लाइव डेटा आपके बैंक स्टेटमेंट से आपके होस्टबुक एप्लीकेशन में आता है। आपको सारा का सारा डेटा होस्टबुक्स एप्लीकेशन में आने के बाद होस्टबुक्स एप्लीकेशन उसको ऑटोमेटिक रिकनसाइल करता है। अगर आपकी बैंक बुक, अगर आपकी अपने अकाउंटिंग में बैंक चढ़ा रखे हैं देन आपके सारा डेटा ऑटोमेटिक रिकनसाइल हो जाता है। अगर कोई मिसमैच है तो वो भी आपको वहां पे देखने को मिलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। आप यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए दोनों ऑप्शन मिल रहे हैं, एक्सेल का इंपोर्ट एंड देन आपको डायरेक्ट बैंक से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। देन इसमें आप बल्क एंट्रीज एक साथ कर सकते हैं। कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ यूजर ऐसे होते हैं जिनको बैंक स्टेटमेंट चढ़ाने में टाइम लगता है या फिर वो चाहते हैं कि मेरा बैंक स्टेटमेंट बहुत सारी ट्रांजेक्शन मेरे सेम तरीके की हैं तो मैं उसको कैसे आसानी से चढ़ा सकता हूँ। तो मैं वो सारी चीज आपको दिखाता हूँ। मैं दिखाता हूँ कैसे आप बैंक को यहाँ पे
इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको सिंपली लिंक योर बैंक अकाउंट टू ऑनलाइन फीड जाना है। आपको कोई सा भी बैंक हो, आप इसको सर्च करना है। आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको बैंक सिलेक्ट करना है, जैसे कोटक आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया बैंक को। आपको अपने बैंक का यूजर क्रेडेंशियल डालना है एंड इसको सबमिट कर देना है। आपका सारा का सारा बैंक स्टेटमेंट विद इन सेकेंड्स आपका बैंक स्टेटमेंट आपका बैंक अकाउंट में इंपोर्ट हो जाएगा। मैंने इसमें एक ऑलरेडी करके रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कोटक महिंद्रा बैंक, ये आप यहाँ बैलेंस देख सकते हैं। आप इस जब आपका बैंक स्टेटमेंट इसमें रेडी हो जाता है, देन आपकी बैंक की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाती हैं। जस्ट आपको रिफ्रेश करना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। इसका बैलेंस है 32,378 एंड मैं गया बैंक स्टेटमेंट में, मैंने इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कोई आपका जो भी जैसे इसमें थोड़ा टाइम ले रहा है कि जो भी आपने सिक्योरिटी एंटर करी थी, क्योंकि टेस्ट है, डेमो है, तो वहां से आपका ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है इसके अंदर। अपडेट आप करते हैं तो हो जाता है। इसमें वहाँ पर इतना टाइम नहीं है कि हम रुक सकते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो सपोज आपका बैंक स्टेटमेंट आपके पास आ चुका है एंड देन आपको रिकंसाइल करना है, तो आप रिकंसाइल पे जाते हैं। आपकी जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो रिकंसाइल हो जाती हैं। सपोज जैसे आप यहाँ पर रेड और ग्रीन देख रहे हैं, रेड शो करता है डेबिट ट्रांजेक्शन, ग्रीन शो करता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अगर कोई ट्रांजेक्शन मैच हो चुकी है तो वो आपको बताता है कि पॉसिबल मैचिंग ट्रांजेक्शन। आपको जस्ट इसको ऑथराइज करना है कि हाँ ये ठीक है, ये मैच कर रहा है, ऑटोमेटिकली मैच करता है। अगर आपको लगता है कि ये ट्रांजेक्शन ठीक नहीं है या फिर ये मैचिंग नहीं हो रहा है, देन आप इसको फाइंड एंड मैच कर सकते हैं। आप फाइंड कर सकते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली मैच करनी है। तो आप मल्टी ट्रांजेक्शन को भी साथ में इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ऑनलाइन मैचिंग होती है। आप यहाँ पे देख रहे हैं सभी ट्रांजेक्शन, मेरी बैंक स्टेटमेंट चढ़ी हुई है एंड मेरी सारी बैंक स्टेटमेंट ये ऑटो पॉसिबल मैचिंग ट्रांजेक्शन दिखा रहा है। मुझे जस्ट जाके इसको एक्सेप्ट करना है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बैंक स्टेटमेंट जैसे होस्टबुक्स में एक ऑप्शन दिया हुआ है अकाउंट्स में कि आपको बैंक स्टेटमेंट खुद से नहीं चढ़ानी है। अगर आप चाहो तो बैंक के अंदर पेमेंट करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी अपनी बैंक को रेडी कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपकी ये स्टेटमेंट है, आप चाहते हो कि ये मेरा किसी अकाउंट में आपको भेजना है, सपोज इसमें, एंड आपने इसको सेव और रिकंसाइल किया, सेलेक्ट किया, आपकी बैंक यहीं से चढ़ जाती है एंड वो रिकंसाइल हो जाती है। इन द सेंस कि आपको बैंक मॉड्यूल में जाके चढ़ाना नहीं है, आपकी जो भी बैंक स्टेटमेंट आई है आप यहीं से उसको कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मल्टी ट्रांजेक्शन होती हैं और उसको हमें एक साथ ही चढ़ाना है, वो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज मेरी कोई ट्रांजेक्शन है पेटीएम से रिलेटेड, और ये मेरी जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो मैं उसको चाहता हूँ कि मैं सेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दूँ। तो मैंने इसको किया, आप यहाँ देखेंगे ये ऑटोमेटिक पिक करता है, आपको यहाँ से पिक करना है, ये सारी ट्रांजेक्शन को पिक करता है, ये सारी ट्रांजेक्शन आपकी सेव हो जाती है। तो आप बल्क एंट्रीज भी यहाँ से कर सकते हैं। इन द सेम मैनर बैंक स्टेटमेंट जो आपने इंपोर्ट करी थी वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका ऑनलाइन बैंक कनेक्ट हो जाता है, आपकी बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ जाती हैं और रिकंसिलेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। मल्टी ट्रांजेक्शन आप एक साथ कर सकते हैं। एंड जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप बैंक स्टेटमेंट भी इंपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट, कोई सा भी बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फॉर्मेट में तैयार रखना है एंड एक्सेल फॉर्मेट से आपको जस्ट वो बैंक स्टेटमेंट रेडी करना है और इंपोर्ट करना है। जो इनकी जो होस्टबुक्स की जो कुछ फील्ड्स हैं, अगर वो फील्ड्स मैप हो जाती हैं देन आपको टेस्ट करना है और वो आपका रेडी टू इंपोर्ट है। आपको जस्ट गो पर इंपोर्ट करना है, आपकी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो जाती है। जब आपकी बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट हो गई है तो देन आपको दोबारा से जाके वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं
रिकंसिलिएशन, ये जो कैश फ्लोडिंग का ऑप्शन था कि आप बल्क डायरेक्ट यहीं से बैंक चढ़ा सकते हैं, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आप कर पाते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं ऑटोमेशन से रिलेटेड, कि ये तो ठीक है कि बैंक स्टेटमेंट हम ऐसे ऑटोमेट करते हैं। अब और भी कई तरह की ट्रांजेक्शन होती है अकाउंटिंग में। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बल्क सेल करते हैं और वो एक साथ चढ़ाना चाहते हैं सेल्स को। तो होस्टबुक्स ने ऑटोमेट करने के लिए, क्योंकि ये इटसेल्फ एक अकाउंटिंग पैकेज है जो हर तरीके की फंक्शनैलिटी देता है जो एक अकाउंटिंग पैकेज में होता है, लेकिन आज का जो टॉपिक है हम वो बार बार हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि कैसे वो ऑटोमेशन है, कैसे मिनिमम एफर्ट के साथ हम ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सेल्स ट्रांजेक्शन कैसे यहाँ पे इंपोर्ट हो जाती हैं। आपको सेल्स ट्रांजेक्शन का कोई प्री डिफाइंड होस्टबुक से कोई टेम्पलेट नहीं है, आपको सिंपली आप अपने टेम्पलेट को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। आपने अगर आपके बिजनेस की मल्टी जीएसटीएन है तो आपको जीएसटीएन सेलेक्ट करना है, ब्रांच सेलेक्ट करना है, जो आपका इनवॉइस है उसका स्टेटस क्या है, देन आपको लोड करना है फाइल को। मैं दिखाता हूँ। ये आपका फाइल लोड हो गया, आपने टेस्ट किया, ये रेडी टू इंपोर्ट है, आपको जस्ट गो पर इंपोर्ट करना है, आपकी फाइल इंपोर्ट हो जाती है। तो यहाँ से आप इस तरीके से इनवॉइसेस को सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। कई बार हमारे इस तरीके के भी यूजर्स होते हैं जो सिर्फ ई कॉमर्स पे ट्रांजेक्शन करते हैं, एंड ई कॉमर्स पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन होती है और ई कॉमर्स से आपको एक एक्सेल फाइल डंप होती है। उस एक्सेल फाइल को यूज करके आप डायरेक्ट इसमें अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो लाइक मैं ई कॉमर्स का दिखा देता हूँ आपको। आपने ई कॉमर्स पे किया, ब्रांच सेलेक्ट किया, इनवॉइस का स्टेटस, वो सारी ट्रांजेक्शन कौन सी सेल्स अकाउंट में जानी है, आपको कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करना है, एंड देन कौन सा ई कॉमर्स का टाइप है, लाइक सपोज फ्लिपकार्ट, और मैंने इस पे क्लिक किया टेस्ट इंपोर्ट। देन आपका कोई भी एक्सेल फाइल जो आपकी डंप होती है फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से, और भी ई कॉमर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप डायरेक्टली उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी उसका मास्टर नहीं बनाना, कोई आइटम मास्टर नहीं बनाना, आपको सिंपली वो फाइल को इंपोर्ट करना है और आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंटिंग एप्लीकेशन में आ जाती है, जो कि रेडी टू यूज है, और आप उसको आगे कंप्लायंसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से सेल्स में इंपोर्ट की फंक्शनैलिटी दिया हुआ है, इस तरीके से जितने भी मॉड्यूल है हमारे, परचेज ऑर्डर, एक्सपेंस, इन्वेंट्री, फिक्स असेट पे मैं आपको 2 मिनट आपका लूंगा। सारे के सारे जो मॉड्यूल है सभी में इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं आपको फिक्स असेट में बताता हूँ फिक्स असेट में क्या है। बेसिकली बहुत सारे अकाउंटिंग पैकेजेस जो हैं वो फिक्स असेट को कंप्लीटली मैनेज नहीं करते हैं, और होस्टबुक्स एप्लीकेशन जो है, होस्टबुक्स अकाउंट्स जो है, वो आपको पूरा कंप्लीट जो साइकिल होता है एक फिक्स असेट का, वो आपको मैनेज करने का ऑप्शन मिलता है, जहां पे आपको सिर्फ रिकॉर्ड को एंटर करना है स्टार्टिंग में कि फिक्स असेट की वैल्यू क्या है, क्या उसका डेप्रिसिएशन का रेट है, वो सारा ऑटोमेट करता है प्रोसेस को। यानी कि आपका डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक होती है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। आप डेप्रिसिएशन को रोल बैक भी कर सकते हैं। अगर सपोज आपने गलती से डेप्रिसिएशन लगा दिया, देन आप उसको रोल बैक भी कर सकते हैं, तो रोल बैक भी ऑटोमेशन होता है। तो जो ये स्टेप में रन डेप्रिसिएशन का बटन क्लिक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फर्दर ऑटोमेट हो सकता है इन द सेंस कि आप एक टाइम पीरियड सेट कर सकते हैं अपने डेप्रिसिएशन का, और उस टाइम पीरियड पे जब भी वो टाइमलाइन उस टाइम पीरियड पे आएगी और वो ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन रन हो जाएगा, एंड डेप्रिसिएशन रन होने के बाद डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो जाएगी। तो सेम मैनर में जैसे डेप्रिसिएशन की एंट्री पास हो रही है, उसी मैनर में यहाँ पे डिस्पोजल के लिए भी जो कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप डिस्पोज करते हैं कोई एसेट को, सपोज तो आपके डिस्पोजल में क्या कॉस्ट थी, क्या लॉस है, क्या गेन है, वो भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है, और उसकी पोस्टिंग भी ऑटोमेटिक करता है सॉफ्टवेयर। तो आपका फिक्स एसेट की पूरी साइकिल मैनेज होती है इस फिक्स एसेट मॉड्यूल में। देन जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स में जिस तरीके से इंपोर्ट मैनेज हो रहा है, उसी तरीके से सभी मॉड्यूल में मैनेज हो रहा है। फिक्स एसेट का सेपरेट मॉड्यूल है। उसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं कि आपने ट्रांजेक्शन सारी कर ली है, एंड देन आप कंप्लायंस पे कैसे आप करते हैं। तो होस्टबुक्स ऑल इन वन का एक फायदा ये है कि अगर होस्टबुक्स में आपने एक जगह डेटा पंच कर दिया है, या डेटा इंपोर्ट कर दिया है, या ऑनलाइन इंपोर्ट कर लिया है, तो डेटा एक बार जब सॉफ्टवेयर में आ जाता है, देन वो ऑटोमेटिकली जितने भी इंटीग्रेटेड इसके पैकेज हैं, जैसे HB GST, HB ई-वे बिल, HB TDS, वो ऑटोमेटिकली उसमें मूव हो जाता है।
तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपका डेटा, सेल्स का डेटा, परचेज का डेटा, एक्सपेंस का डेटा, कैसे वो सारी एप्लीकेशन में मूव कर रहा है। तो सपोज मेरे जितने भी सेल्स का डेटा है, अगर मैं यहाँ पे, आप फाइलिंग टैब देख रहे हैं, तो मेरे पास जीएसटी एंड टीडीएस है। मैं आपको टीडीएस पे लेके जाता हूँ। अगर आपने परचेजेस के अंदर, आप देखेंगे कि ये मैं अकाउंट्स के एप्लीकेशन के अंदर हूँ, लेकिन मैं टीडीएस मॉड्यूल में जीएसटी के आ चुका हूँ, और सॉरी, होस्टबुक से टीडीएस मॉड्यूल में आ चुका हूँ। आप कस्टमर पोर्टल से डायरेक्ट टीडीएस के लॉगिन, टीडीएस के आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे आ सकते थे। आप अकाउंटिंग एप्लीकेशन से भी यहाँ चले गए, आपने एक जगह एंटर किया और आपकी रिटर्न्स रेडी हैं। जो भी आपने डेटा एंटर किया है, सेल, परचेजेस में, एक्सपेंस में, अगर आपने टीडीएस की एंट्री पास करी है तो आपका रिटर्न रेडी है। आपको वर्क ऑन दिस रिटर्न पे जाना है, चालान ऐड करना है, मैप करना है और जनरेट एफटीवी फाइल। सिंपली आपको डिडक्शन एंट्री यहाँ नहीं करनी, आपको कोई एक्स्ट्रा इंपोर्ट नहीं करना, कहीं से एक्सपोर्ट करके कहीं से इंपोर्ट नहीं करना। तो आपका ये जो ट्रांजेक्शन जो आपने सेल्स में करी थी, सॉरी परचेज और एक्सपेंस में करी थी, वो ऑटोमेटिकली टीडीएस मॉड्यूल में यहाँ पे आ जाता है। जस्ट आपको, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट क्वार्टर, जो उस तरीके का मेरा डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग मेरे रिटर्न्स ऑलरेडी इसके अंदर आ रहे हैं। सेम मैनर के अंदर जीएसटी भी आप, जो भी आपने डेटा सेल्स का एंटर किया है, क्योंकि जो भी हमारे सप्लायर हैं, जो भी सेल्स का डेटा एंटर करते हैं, वो डायरेक्टली उनकी जीएसटी की कंप्लायंस होती है और ई वे बिल की भी कंप्लायंस होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी के अंदर वो कैसे जाते हैं। आपको जीएसटीएन सेलेक्ट करना है, उस बिजनेस का कौन से जीएसटी नंबर पे आप जाना चाहते हैं। अगर कोई एरर है तो वो सामने आ जाती है, उसको रिमूव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे मैं अकाउंट्स के एप्लीकेशन के अंदर जीएसटी में आ चुका हूँ, और जीएसटी के अंदर वो मेरे सारा सेल्स का डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो आपको एक बार डेटा पंच करना है, इंपोर्ट किया आपने डेटा सेल्स से, एंड इंपोर्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली जीएसटी में आ गया। आपको सिंपली जाके जीएसटीआर1 पे क्लिक करना है। जीएसटीआर1 में फ्रॉम सेल्स इनवॉइस पे क्लिक किया, व्यू माय इनवॉइसेस पे क्लिक किया, प्रिपेयर डेटा पे क्लिक किया, एंड आप देखेंगे कि आपके रिटर्न्स रेडी हैं। जो भी आप पीरियड सेलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आपकी रिटर्न्स रेडी है। तो रिटर्न्स जो है वो आपको डायरेक्टली आपके सेल्स से आपकी रिटर्न्स रेडी हो गई हैं, और आप यहाँ से जीएसटीआर1 डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं, जीएसटीआर3 भी डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। जीएसटीआर3 भी डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इसमें आप यहाँ देखेंगे कि ई वे बिल भी कनेक्टेड है। तो जैसे मैंने अकाउंट्स के एप्लीकेशन में बताया था, हेलो, वॉइस ऑडिबल है सभी को? हाँ राकेश जी, वॉइस ऑडिबल है। ओके ओके, मैं स्क्रीन पे जाता हूँ। स्क्रीन दिख रही है ना? दिख रही है। स्क्रीन इज विजिबल? ओके। हाँ, यस यस। सो जैसे आपने देखा कि आपने जीएसटी मॉड्यूल देखा, आपने अकाउंट से जीएसटी में आए, एंड जीएसटी में एक ई वे बिल का इंटीग्रेशन किया हुआ है। आपको जब आपने सभी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब कर रखा है तो वो सारे इंटीग्रेटेड होते हैं। ई वे बिल पे इंटीग्रेटेड किया मैंने, आपने देखा कि मैंने सेल्स यहाँ पे इंपोर्ट किया, मेरा जीएसटी रिटर्न भी रेडी हो गया, एंड मैं ई वे बिल भी यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया और मैंने इसको जनरेट ई वे बिल पे क्लिक किया। मुझे पार्ट बी की डिटेल्स सिर्फ इनपुट करनी है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स है, वो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स यहाँ पे इनपुट करके जनरेट करना है। तो मेरे को कोई भी डेटा अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट एक डेटा से मल्टीपल कंप्लायंसेस आप कर सकते हैं। तो यानी कि एक बार डेटा आप अकाउंटिंग में पंच करते हैं तो आपका डेटा जो है वो जीएसटी के लिए भी रेडी है, ई वे बिल के लिए भी रेडी है, एंड टीडीएस के लिए भी रेडी है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैं आपको अब डायरेक्टली जीएसटी एप्लीकेशन में लेके जाता हूँ कि अकाउंटिंग में तो आपने देखा कि हर जगह हमने इंपोर्ट की फंक्शनलिटी दिया है। फिक्स असेट के अंदर हमने उसको ऑटोमेट किया है, डेप्रिसिएशन के प्रोसेस को और डिस्पोजल के प्रोसेस को, एंड बैंक के अंदर कैसे एआई फंक्शनलिटी यूज करके, एआई को यूज करके उसका हमने रिकंसिलेशन, इंपोर्ट, ऑनलाइन फीडिंग, ये सारा हम करते हैं इसके अंदर। देन मैं आपको जीएसटी पे लेकर चलता हूँ। ये जीएसटी का आइकन है, इस पे जीएसटी के आइकन पे क्लिक किया। ये आपका जीएसटी का फाइलिंग डैशबोर्ड आता है। आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर जीएसटीआईएन का फाइलिंग स्टेटस देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ।
जब भी आप किसी भी जीएसटीएन में आते हैं तो उस जीएसटीएन का क्या रिटर्न का स्टेटस है आप उसको फ्रंट डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। अब हम आते हैं रिटर्न्स में। तो जिस तरीके से अकाउंट्स में हमने हर जगह इंपोर्ट किया है उस फंक्शनैलिटी को, सेल्स को, परचेज को, उसी तरीके से अब कोई भी पर्सन, जितने भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो जीएसटी कंप्लायंस बेसिकली करते हैं कि क्लाइंट उनको डेटा दे देता है या एक्सेल फाइल दे देता है, उसके बेसिस पे उनको जीएसटीआर 1 बनानी है, उसके बेसिस पे उनको जीएसटीआर 3 भी बनानी है, उसके बेसिस पे परचेज का डेटा मिलता है, उसके बेसिस पे उनको रिकंसिलेशन करना है। रिकंसिलेशन के लिए उन्हें जीएसटी पोर्टल से 2-वे डाउनलोड की रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, एंड देन वहां से डाउनलोड करने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद वहां से डेटा आता है, एंड देन हम उसको मैनुअली एक्सेल पे रिकंसाइल करते हैं। तो यहाँ कैसे वो ऑटोमेट होता है उस प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इंपोर्ट दिखाता हूँ कि कैसे जीएसटीआर 1 रेडी होता है। किसी भी सॉफ्टवेयर से या फिर गवर्नमेंट की जो ऑफलाइन यूटिलिटी है या फिर कहीं से भी अगर आपने जैसे मैं आपको ये मैं दिखा रहा था, सॉरी यहाँ से दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ इंपोर्ट है कि जैसे सेल्स आपने वहाँ पे इंपोर्ट किया था, यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है। इस सेल्स में ऑप्शन ये है कि ये होस्टबुक्स का प्री डिफाइंड टेम्पलेट है। अगर आप होस्टबुक के टेम्पलेट पे डेटा मेंटेन करके इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आपका सेल्स रेडी है। सेम मैनर में परचेज, तो मैं आपको परचेज दिखाऊंगा अभी रिको के टाइम पे। अगर आप अगर आपके पास अपनी कोई एक्सेल फाइल है तो वहां से भी आप इसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे। आपको दिखाता हूँ, मैं इसको आपको एक्सेल दिखा देता हूँ कैसा है ये। आप ये देखिए, एक सिंपल सी एक्सेल है जो आपके पास है, आप जस्ट आपको इसको इंपोर्ट करना है। इसको इंपोर्ट किया, आपने रो डिफाइन करी कि किस रो से डेटा है, हेडर 1 में है और डेटा नंबर 2 से स्टार्ट होगा। अपलोड पे क्लिक किया। कोई भी एक्सेल फाइल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको सिंपली मैपिंग करनी है। अगर आप एक फाइल के अंदर ऑलरेडी मैपिंग कर चुके हैं, देन आपको वो मैपिंग भी ऑटोमेटिक हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। देन आपको सेव मैपिंग पे जाना है। इनवॉइस डेट में कर देता हूँ, सेव मैप फील्ड, मैपिंग सक्सेसफुल, इंपोर्ट। आपकी फाइल इंपोर्ट हो चुकी है, एंड देन आपको जाना है ओके, सेव, ओके, दिस इज द फाइल बेसिकली। सो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने एक्सेल से, किसी भी एक्सेल से आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट एक मैपिंग करना है। मैपिंग वन टाइम है, एक बार आपने मैपिंग सेव कर दी तो वो मैपिंग ऑटोमेटिक पिक करता है। मैपिंग पिक करने के बाद वो सेल्स आपका ऑटोमेटिकली यहाँ इंपोर्ट हो जाता है। जब आपका सेल्स यहाँ इंपोर्ट हो गया, देन आप दोबारा से जीएसटीआर 1 प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि ये जीएसटी एक सेपरेट मॉड्यूल है, अगर आपके पास इंपोर्ट से नहीं करना चाहते मैनुअली, तो ये सारा काम मैनुअली भी होता है। यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि क्या आपकी ट्रांजेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3 में जिससे भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ पे आती है। सेम मैं आपको बताता हूँ कि इस तरीके से इंपोर्ट में जैसे आपने सेल्स इंपोर्ट किया, राकेश जी वीडियो बंद कर लीजिए अगर वॉइस कट रही है। अभी दिख रहा है। तो जैसे आपने अकाउंट में देखा कि फ्लिपकार्ट और ई कॉमर्स की अकाउंटिंग कर सकते हैं, वहां से टेम्पलेट डाउनलोड करके एक्सेल फाइल डंप करके, उसी तरीके से आपको यहाँ से भी आप वो फ्लिप और अमेजोन की एक्सेल डंप फाइल है, आप वहां से इसको इंपोर्ट करके उसकी कंप्लायंस, उस तरीके के क्लाइंट्स की कंप्लायंस कर सकते हैं। यहाँ से आपको सिंपली इंपोर्ट करना है, आपका जीएसटीआर 1 एंड 3 भी ऑटोमेटिक रेडी। अब हम दिखाते हैं कि आपको जीएसटीआर 2A जो रिकंसिलेशन होता है वो इतना डिफिकल्ट टास्क है और उसको कैसे हम मिनिमाइज कर रहे हैं होस्टबुक्स में। तो आपको सिंपली जीएसटीआर 2A डाउनलोड करना है। जैसे आप गए जीएसटीआर 2A पे गए आप एंड आपने मंथ सिलेक्ट किया, आपके पास दो ऑप्शन आता है, डाउनलोड विदाउट ओटीपी, डाउनलोड विद ओटीपी। विदाउट ओटीपी बेसिकली आपको यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। विद ओटीपी अगर आपके पास यूजर नेम है
तो जिसका भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसकी एक OTP जाती है जो 24 आवर्स मतलब वो OTP के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको विदाउट OTP करके दिखाता हूँ। मेरे पास इसका यूजर ID पासवर्ड है, देखो सिर्फ कैप्चा एंटर करना है, डाउनलोड GST आती है जो कि वहाँ पे एक रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है एंड वो 20 मिनट बाद अवेलेबल होती है। आप यहाँ देखेंगे कि वो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका 2A यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है एंड देन आपको जस्ट परचेज को यहाँ पे एंटर करना है। तो एंटर नहीं करना, उसका भी इंपोर्ट है, वो मैं आपको इंपोर्ट दिखाता हूँ कि इंपोर्ट कैसे आप पाएंगे। ये आपका GST 2A आ चुका है। अब आपको परचेज करना है तो देन वापस आप इंपोर्ट सेक्शन में गए, आपने परचेज पे गया, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डिटेल्ड परचेज इंपोर्ट कर सकते हैं और क्विक, क्योंकि हमें रिकंसिलेशन करना है तो B2B परचेजेस की रिकंसिलेशन होती है, तो हमने इसको क्लिक किया एंड फाइल चूज किया हमने एंड देन सबमिट। फाइल अपलोड है, जैसा डेटा होगा उस हिसाब से फाइल अपलोड हो जाती है एंड अप्लाई। मैं परचेज में जाके दिखाता हूँ आपको, डेटा आ चुका है 1920। हाँ ठीक है, तो परचेज में डेटा आ गया, आपका 2A डाउनलोड हो गया विद इन ए फ्यू सेकेंड्स एंड परचेज आपका इंपोर्ट हो गया सिंपल एक्सेल से एंड आपको रिको पे जाना है। सिंपली आप रिको पे गए, आप मंथ सेलेक्ट किया, किस मंथ का रिकंसिलेशन करना है, आपका रिकंसिलेशन भी क्लिक डन। अब आप जब रिकंसिलेशन पे अंदर जाते हैं देन आपके पास ऑप्शन है कि आप स्टेटस वाइज उसका देख सकते हैं कि कितनी इनवॉइस मेरी मैच है, कितनी इनवॉइस मेरी मिसमैच है, उसके बेसिस पे आपको ये डेटा मिलता है। तो आपका रिकंसिलेशन इजी हो जाता है, यहाँ से आप डेटा अपने परचेज में करेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से आप उसको रिकंसाइल अगेन कर सकते हैं एंड 2A भी अपडेट आप दोबारा से 2A डाउनलोड करके अपडेटेड 2A से रिकंसाइल कर सकते हैं। जो भी अनरिकंसाइल्ड वैल्यू है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको फ्यूचर डेट पे जाके फिर से उसको रिकंसाइल कर सकते हैं। देन इस तरीके से आपका रिकंसिलेशन ऑटोमेट होता है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि परचेज में भी मैंने GST में भी इंपोर्ट को हाईलाइट किया एंड सेल्स अकाउंट्स में भी मैंने इंपोर्ट को हाईलाइट किया, कैसे ऑनलाइन फीडिंग हो रही है। अब आपने यहाँ पे सारी इंपोर्ट फंक्शनलिटी कर ली। अब सुजीत सर आपको दोबारा से दिखाएंगे कि कैसे वो थर्ड पार्टी से HPT इंटीग्रेट होता है एंड देन वो कैसे आप उसको डील करते हैं थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करके, कैसे यहाँ पे आपका कंप्लायंस इजी होता है। सुजीत सर ओवर टू यू। थैंक यू राकेश जी। विराग सर काइंडली मेरा स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। एंड विराग सर एक रिक्वेस्ट है, हमारा एक ऑफर है चल रहा है, उसके लिए एक लिंक शेयर करा हुआ है, काइंडली आप अगर उसको शेयर कर पाएंगे ऑडियंस के साथ। That already done, Sujit sir. हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। तो जैसा अभी आप सबने, राकेश जी ने हमें दिखाया कि कैसे हम GST और अकाउंटिंग सारे कंप्लायंसेस को कर सकते हैं, तो मैं अभी आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ कि कैसे टैली से हमारा जो रेगुलर मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज होता है, जिसमें हमारा सेल परचेज बेसिकली लोग कैप्चर करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उससे GST का हम किस तरह से डेटा को कैप्चर कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में ऑन ए क्लिक ऑफ माउस, ताकि हम अपना परचेज जो हम यहाँ करते हैं उसका रिकंसिलेशन जैसा आपने देखा अभी किस स्मूथली से कर सके। जिसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारा परचेज डेटा उठ के चला जाए, रिटर्न फाइल करना है ऑन द गो विदाउट एनी एक्सटर्नल लॉगिन करके, क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर में आप वहीं पर स्टे करके वहीं से डायरेक्टली आप भेज सकते हैं। अगर आपके पास, अगर वन का मैं बात करूं, तो अगर आपके पास 70-75 भी डेटा हुआ है और उन डेटा को जेसन से भी करना है और कुछ एरर आ गई, तो भी आपको पोर्टल पे जाके फिर से देखना, चेक करना, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। लेकिन वही चीज अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं तो आपको स्टेटस और जो API के थ्रू से डेटा जाती है वो काफी फास्ट है, और साथ ही साथ अगर कोई एरर है आपको इंस्टेंट वहीं पे पता चल जाती है। यू डोंट हैव टू री लॉग इन, और या सेशन एक्सपायर हो जाए आप बाद में आके चेक करेंगे कि इसमें एरर आ गया जेसन फाइल में, तो ऑल दिस थिंग्स विल बी टेकन केयर इटसेल्फ इन द सॉफ्टवेयर। तो उसी के लिए अगर हम टैली से डेटा लेके जाते हैं
तो कैसे जाता है हमारा डेटा और किस कीज के साथ ये इंटीग्रेशन होता है ताकि हम अपना 9C का भी काम कर सकें, वो मैं अभी डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा हूँ। ये मेरी एक टेस्ट कंपनी है जिसमें हमने कुछ सेल्स का डेटा रखा है सैंपल। यहाँ 3 सेल्स का डेटा रखा हुआ मैंने अप्रैल 20 में, और वही एक परचेज का है हमारा, 2 सैंपल रखा है, जीएसटी परचेज, जीएसटी सेल्स। ये हमारी टेस्ट कंपनी है जीएसटी की सॉफ्टवेयर की, हमारे मॉड्यूल पे। हमें सब सेटिंग्स में जानी है। टैली सेटिंग्स में हमें ये डिफाइन करना है कि हमें सेल्स इंपोर्ट करना है या परचेज सेल्स इंपोर्ट करना है। उसके बाद हमें किस पीरियड से इसको डेटा को कैप्चर करना है। मैं चाहूँ तो पूरे साल का एक साथ कर सकता हूँ, स्टार्टिंग डेट टू एंड डेट डाल के। अभी मुझे 1 महीने का करना है तो मैं इसे सेव करूँगा। हमारी सेटिंग ऑलरेडी बैकएंड पे डली हुई है जो कि हमारा सॉफ्टवेयर के साथ टैली का कनेक्टिविटी करता है। तो हमें बस फेसबुक इंटीग्रेशन करना है, लॉगिन करना है। ये हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करेगा अभी, और जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ उसके नीचे सिंक सेल्स है, तो हम यहाँ पर सेल्स सिंक स्टार्ट कर देंगे। तो ये डेटा को यहाँ से कैप्चर करेगा विद सारे एरर्स जो भी है उसे भी ढूंढेगा। अगर कुछ एरर है तो आपको नोटिफाई करेगा। यहाँ अपलोड कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वापस सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, इंपोर्ट्स में आएंगे। इंपोर्ट में आके हमें टैली टू जीएसटी वाले सेक्शन में जाके देखना है कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन बटन पे कलर आ गया है ब्लू कलर, जो आप लोग देख रहे हैं। इसका मतलब है कि डेटा यहाँ तक तो आ चुका है। और अगर क्लियर लॉग में कोई गलती होती है, जैसे कि जीएसटीएन नंबर गलत है डेटा में, या फिर आपका 16 डिजिट नंबर से ज़्यादा है इनवॉइस, अदर कोई डेटा हो में कोई अदर एरर हो, तो वो भी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो आपका जो डेटा इंपोर्ट हो रहा है वो रोक दिया जाता है जहाँ पर एरर है। अभी डेटा यहाँ आ चुका है लेकिन सिंक नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी इसे सिंक नहीं कर रहा हूँ। मैं सेल्स 19-20 में अगर जाके 20-21 में देखता हूँ, अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं है। तो जब तक आप सिंक नहीं करते हैं इसको, ये डेटा इंपोर्ट नहीं होगा, आके यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं इसे सिंक कर दूंगा, ये डेटा हमारे यहाँ पोस्ट हो जाएगी। अब अगर इस पोस्टिंग के बाद अब मैं चाहूँ तो सेल्स मैं इस पर रिटर्न फाइल कर सकता हूँ, मैचिंग कर सकता हूँ, कुछ भी चीजें इजीली स्टार्ट कर सकता हूँ अपना काम। ये बैकएंड पे चल रहा है, थोड़ी देर में ये सिंक होके पोस्ट भी कर रहा है डेटा को बैकएंड पर। ये आपकी पोस्टिंग हो गई सेल्स की। अब अगर मैं सेल्स पे जाके चेक करूं तो हमारी 3 सेल्स एंट्री यहाँ पोस्ट हो चुकी है। ये 3 सेल्स एंट्री हमारी आ गई है विद ऑल डिटेल्स। साथ ही साथ हम सिमिलरली परचेज की भी एंट्री कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, सिर्फ वहाँ सेल्स की जगह परचेसिंग करना है और यहाँ सेटिंग्स में सेल्स की जगह परचेज सेलेक्ट करना है। ये परचेज सेलेक्ट कर दिया, अब वहाँ पर सिंक कर देंगे हम। सिमिलरली परचेज सिंक कर दिया तो हमारा परचेज का डेटा भी इसी तरह चला जाता है। और एक बार जब परचेज और सेल का डेटा आपका कंप्लीट चला जाता है विद डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, सेल्स के साथ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ये भी जा रहे हैं, अगर कोई है तो वो भी इसके साथ सिंक होके चला जाता है। ये यहाँ डेटा अपलोड हो गया, हमें वापस से इंपोर्ट में जाके इसे सिंक कर देना है। ये हमारा सिंकिंग हो गया। अब हमारा परचेज डेटा भी यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह हम टैली से अपने सेल्स और परचेज को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हमारा काम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो गया ना। अब हम चाहें तो जीएसटीआर 1 फाइलिंग कर सकते हैं, हम चाहें तो पूरे साल का डेटा यहाँ पर इंपोर्ट करके उसका रिकंसिलेशन कर सकते हैं, हम चाहें तो पूरे साल का डेटा यहाँ इंपोर्ट करके 9C का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए ये इंटीग्रेशन बहुत ज़रूरी होती है। दूसरा हमारा एक और इंटीग्रेशन है मार्केट को देखते हुए, मार्केट की रिक्वायरमेंट को देखते हुए। हमारे पास होस्टबुक का ई-वे बिल है। अगर हम अपने होस्टबुक ऑल इन वन की बात करें तो जैसा ये ऑटोमेशन है कि यहाँ पर आप एक जगह एंट्री करें और पोस्टिंग हर जगह हो जाती है, चाहे वो टीडीएस हो, कंप्लायंस का, जीएसटी हो या ई-वे बिल भी हो, तो ये सारी तो हो जाती है। लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे, हमने टैली के साथ इंटीग्रेट किया है इसको, कि अगर आप यूज कर रहे हैं टैली और टैली से आपको ई-वे बिल ऑन द क्लिक ऑफ जो एक्सेप्ट वाउचर के बटन होती है जब आप सेल्स इनवॉइस करते हैं,
तो आपका ई वे बिल जनरेट हो जाए, तो वी थिंक इट्स अ टाइम सेविंग फॉर एवरीवन, क्योंकि आप एक बार सेल्स इनवॉइस एंटर करेंगे और फिर जाके पोर्टल पे अपलोड करेंगे या जेसन अपलोड करेंगे, फिर वो पॉपुलेट होगा। एक दो इनवॉइस के ई वे बिल के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर सच में जिनके पास ज़्यादा ई वे बिल का रिक्वायरमेंट है, तो सेम काम दोबारा करने से बेटर है कि हम आपको एक बेनिफिट दे दें कि आप अपना इनवॉइस का काम करें। जैसे ही आपने इनवॉइस का प्रिंट करा, एक्सेप्ट करा इनवॉइस, आपका ई वे बिल विल बी रेडी टू प्रिंट। तो वही चीज मैं आपको यहाँ डिमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि हाउ एक से इनवॉइस में बनाता हूँ और उसको जैसे ही मैं सेव करता हूँ, इट विल प्रॉम्प्ट मी फॉर ई वे बिल जनरेशन। तो उसके लिए मुझे होस्टबुक ई वे बिल का पोर्टल और लॉगिन कर लेना होगा पहले। ये मैं लॉगिन कर लूंगा और पोर्टल पे भी लॉगिन कर लूंगा ई वे बिल पे, तो ये मेरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये मेरे सॉफ्टवेयर से बैकएंड पे कनेक्टिविटी कर दिया मैंने। अब मैं अगर सेल्स इनवॉइस रेडी करता हूँ, जो कि मैंने एक रेडी करके रखा हुआ है यहाँ पर। हेलो हेलो हेलो, लॉस्ट हो गया है। हाँ यस एक यस बार स्क्रीन दीजिएगा सर। विराट सर, हाँ हाँ, तो मैं यहाँ सेल्स एंट्री दिखा रहा था आप लोगों को। स्क्रीन अब शायद अभी दिख रही है। मैंने अपना सेल्स का एंट्री पोस्ट कर लिया यहाँ पर। मैं यहाँ पर ई वे बिल के लिए यस कर दूंगा। जो ई वे बिल के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो मैं फिल कर दूंगा कि गाड़ी कितने किलोमीटर है, कौन से डिस्टेंस से कहाँ जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन मोड ऐड कर दूंगा। सुजीत जी, complete your presentation in 5 minutes. Yes sir. So now if I generate yes over here, it will prompt me to e-way bill generation. ये मेरा ई वे बिल लाइव जनरेट हो गया। ये लाइव आपके सामने है ई वे बिल नंबर। अगर मैं इसे प्रिंट करूं अभी, तो आपका ई वे बिल भी प्रिंट हो जाएगा। ये रहा सर ई वे बिल। ये आपका इमीडिएट अभी लाइव जनरेट हुआ है। हम यहीं से इसे कैंसिल भी फर्दर कर सकते हैं। तो इसका डेटा आपका ई वे बिल का मेरे ई वे बिल का ऐप में मिल जाएगा, मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। आप कभी भी उसे कहीं से भी एक्सेस करके पार्ट भी अगर जनरेट करना वो भी कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको होस्टबुक से और ऑल इन वन से मिलती है। समय कम है इसलिए मैं इसे कंक्लूड कर रहा हूँ। बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि फीचर्स तो बहुत सारे हैं, इन डेप्थ हम और बता सकते हैं आपको। तो जो लिंक जो शेयर किया हुआ है, प्लीज़ उसमें अपने डिटेल्स फिल करें और फिल करें कि आपको वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, ताकि हम आप तक कनेक्ट कर पाएँ और कनेक्ट कर पा और बता पाएँ कि और ज़्यादा बेनिफिट्स क्या है, फुल्ली डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ। जो भी हमारे ऑडियंस है, अगर वो देख रहे हैं मेरी स्क्रीन को, तो हमने उनके लिए ऑफर रखा है कि 25% ऑफ है और 72 आवर्स के अंदर अगर आप परचेस करते हैं। और सीए फर्टिलिटी के लिए ये 3 यूजर अनलिमिटेड बिजनेस के लिए है और ऑल इन वन सॉफ्टवेयर उनके लिए है। थैंक यू सो मच विराट सर, अगेन आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया होस्टबुक्स को। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you ji. Now would like to request Anupam ji to start the session.
Anupam ji, are you there? Or Amay ji, are you there? Anurup ji, please unmute yourself. आपको आवाज आवाज आ रही है सर? Yeah, please continue. सर या आवाज आ रही है? Okay. Yeah, so good evening everyone. So as we all know that Amay was giving this presentation, but suddenly he got the he lost the internet connection. So that is the only reason now I am going to take care. So I will not take much further time. I will just start. So this is a small video we prepared about the simplify practice. So everyone able to see the screen? So this is the scope and function mentioned in the screen. Benefits of the simplify practice available in the software. So we are offering you the 3 modules: practice management, CRM, and employee module. Employee management, we are offering you the facility of task and time, attendance, expense management, and this is the contact detail. I will show you in the last. So introduction about the simplify practice. Simplify practice started in 2018 in the month of October. So we signed a MOU with ICAI. Under that agreement, we are offering this application free of cost up to 30th October 2020. So it's still 3 months to go, and all the registered person, all the CA firm who are going to register by today itself, then we are giving you a complimentary for more 2 months. Then the application is under MOU with ICAI, and we as a parent company, we are having expertise in BFSI sectors. We are having few big name along with us who are using our application. We are having CRM software as well. The parent company having the ERP and WMS and other software. The parent company is Vritti Solutions Limited. It is started in 2007 and having Pan India presence. And we have been serving as a consultant to SME, private company, and government sector companies. The company has 400 plus employee strength, and currently we are having 10,000 plus different clients. The company has been awarded like ET Brand Equity Award in 2019, Indian ISB Award, Best ERP Solution Award. So they all are the achievement for the parent company and credential about the parent company. Reason to go with the simplify practice. So as we all know that currently we are facing the pandemic of COVID-19. So this is the situation where everyone working from home. So this is the right software. With the help of that, you can manage and monitor your entire team on a single click on our provided dashboard. So one thing is that work from home, each and every employee is doing nowadays work from home. So we are giving you the facility that you can manage and monitor the work with the help of an Android based mobile app, as well as we are having a portal facility. So if any person who is working from anywhere, any place, he can use the mobile app or further the web portal and keep the tracking of the work. Even being a partner of the company or being the management person of the company, on a single click you can keep the information like what are the assignments going on, what are the current situation, who all are the busy, who all are working for which client. And we also observe, and this is our observation, that in last 6 months the registration growth is increased. So now we are getting more and more response from CA firms. So what is simplify practice? So it is a practice management tool for CA and CA firm. Android mobile application available. We track the location of and field of employee. So if your person, your employee, or your article or guide, if he is working from client sites, if you want to track the location, yeah, he reached the on location on time, or not, he reached on location a little bit late. So everything you can monitor with the help of this Android-based application. We are giving you the facility of profitability report. So we can track, we can take a simple example. So if we are picking any assignment, कोई भी assignment हमको आता है, एक assignment हम clients का लेते हैं, we are getting that assignment in 10,000 rupees. भी in system में हम आपको ये भी facility दे रहे हैं कि per person per hour costing आप track कर सकते हो. तो एक particular assignment को complete करने के लिए अगर आपके
5 दिन लगे, आपके बंदे की जो कॉस्ट है वो 900 रुपीज पर डे है, तो आपको वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करने के लिए मिलता है कि 4500 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया, जो आपका 10,000 रुपीज का क्लाइंट था। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी जो आपको ट्रैक करनी है वो आप कर सकते हैं। Practice management provides you an end-to-end solution and act in information hub related to a work assignment for a CA। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें असाइनमेंट आप देख सकते हो, कौन कौन से क्लाइंट का आपका असाइनमेंट चल रहा है, कौन कौन उसमें मेंबर्स हैं, कितनी टास्क आपकी कंप्लीटेड है, कितनी पेंडिंग है, कितनी WIP में है, ये सारी चीजें आपको सिस्टम में मिलेगी। It helps to synchronize and automate multiple process. We can get the record of the work done by the article in a day। डेली की टाइम शीट की फैसिलिटी अवेलेबल है। कोई भी आपका आर्टिकल गाइड है जो सुबह 9:30 से काम करना चालू करता है टिल 6:30, तो जितना भी उसने काम किया है पर आवर की उसको टाइम शीट फिलिंग की हमने फैसिलिटी दी हुई है, तो वहां पे वो टाइम शीट फिल कर सकता है। We can assign opportunity to the sales executive once and prospect come for an inquiry। अभी कोई भी बिजनेस रहेगा, चाहे वो CA फर्म की ऑडिट का भी काम हो, वहां पे भी हमको क्लाइंट तो नए लाने ही लाने हैं। तो जहां पे क्लाइंट लाने के लिए हमको CRM सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने CRM सॉफ्टवेयर भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन के साथ इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। ये हमारे कुछ रजिस्ट्रेशन हैं, किस तरीके से हमारा अभी आज तक हमारे पोर्टल पे सिंप्लीफाई प्रैक्टिस यूज करने वाले कस्टमर का काउंट जो है वो 5829 है। ये जुलाई 2020 का फिगर है। एंड ये जो फिगर है, ये जो मैंने भी आपको बताया कि लास्ट 6 मंथ में इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल जुलाई महीने में ही हमने 306 रजिस्ट्रेशन और 306 CA फॉर्म ऐसे हैं जो हमारे पोर्टल पे आए हैं और अभी हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अभी आप रजिस्ट्रेशन वाइज देखोगे तो यस, स्टार्टिंग फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी सारी जगह पे हमारे क्लाइंट्स हो चुके हैं। सारी जगह पे 29 स्टेट्स में भी अभी अवेलेबल है। ऑल द यूनियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी भी हमने कवर किया हुआ है। जैसा मैंने भी आपको बताया कि सिंप्लीफाई प्रैक्टिस अंडर MOU विद ICAI, तो ये आप देख सकते हैं ICAI का जो न्यूज का सेक्टर है पोस्ट का, उसमें आपको हमारे प्रोडक्ट के बारे में मिल जाएगा। तो जिसका कमेटी ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग ने ये MOU साइन किया था हमारे साथ, तो ये हमारा ऐड है, ICAI की वेबसाइट पे प्रेजेंस है हमारा। अभी जो हमारे पास मॉड्यूल है वो प्रैक्टिस मैनेजमेंट है, CRM है, एम्प्लॉय है, चैट है। प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर आपके जो डेली के काम आते होते हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। कोई भी असाइनमेंट रहेगा उसके रिलेटेड आपको ऑडिट करना है, टैक्सेशन करना है, GST फिलिंग करना है किसी क्लाइंट का, तो ये सारी चीजें आपके प्रैक्टिस मैनेजमेंट मॉड्यूल के अंदर आती है। CRM, कोई भी नए प्रोस्पेक्ट को आप अप्रोच करते हो तो जब उसको आप फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे जब आप उससे किसी असाइनमेंट के लिए बात करते हो, डिस्कशन होता है, डॉक्यूमेंट एक्सचेंज होते हैं, तो वो जो पूरा पार्ट होता है वो CRM के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में एक्सपेंस मैनेजमेंट, जो किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के यहाँ जाने के लिए एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस मैनेजमेंट हो गया, लीव्स मैनेजमेंट हो गया, अटेंडेंस मैनेजमेंट हो गया, ये सारी फैसिलिटी आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर में है। देन चैट फैसिलिटी है, तो जो व्हाट्सएप के थ्रू चैट होती है या नॉर्मल चैट होती है, वो सारी चीजों को हम स्किप कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। तो इंटरनल जो हमारा सर्वर रहता है, तो हमारी जो भी रिकॉर्डिंग है, हमारी जो भी चैट है, वो किसी और को विजिबल नहीं होगी, तो इंटरनल सर्वर पे हम चैट भी कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी भी हमारे एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। अभी इसमें असाइनमेंट के टाइप हैं, तो लार्ज असाइनमेंट, मीडियम असाइनमेंट, स्मॉल असाइनमेंट, इसके थ्रू हम लोग ये परफॉर्म करते हैं। तो किसी भी टाइप का असाइनमेंट हो, एक छोटा सा टास्क भी आपको मिलता है, किसी का आपको TDS भरने के लिए भी काम आता है, तो स्मॉल, बिग, लार्ज, सारे जैसे भी टाइप के असाइनमेंट होंगे आप प्रोजेक्ट के थ्रू मैनेज कर सकते हो। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आप देख सकते हो टास्क एंड टाइम है, अटेंडेंस है, एक्सपेंस मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीजें हमने सॉफ्टवेयर के अंदर दी हुई है। इनिशियल जो 5 स्टेप्स हैं सिंप्लीफाई प्रैक्टिस को स्टार्ट करने के लिए, वो सामने आपके क्रिएशन ऑफ अ यूजर, क्रिएशन ऑफ अ क्लाइंट, क्रिएशन ऑफ अ असाइनमेंट, क्रिएशन ऑफ अ एक्टिविटी, देन रिकॉर्डिंग ऑफ द वर्क। तो कोई भी एक नया क्लाइंट आता है, आपको जब भी ये सिंप्लीफाई प्रैक्टिस यूज करना चालू करना है, आपको क्रेडेंशियल जो ID पासवर्ड होते हैं आपके यूजर के, वो क्रिएट करिए। एक क्लाइंट को असाइनमेंट आप सिस्टम के अंदर डालिए, क्लाइंट ऐड करिए, देन उसका जो भी असाइनमेंट है उसको क्रिएट करके और एक्टिविटी बेस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से सिंपल 5 स्टेप में आपका सिंप्लीफाई प्रैक्टिस यूज करना चालू हो जाता है। एंटायर सॉल्यूशन जो है इसमें BI रिपोर्ट है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल भी हमने इंटीग्रेट करके रखा हुआ है। तो जो भी रिपोर्ट, जैसी भी रिपोर्ट आपको, जो रो, जो कॉलम एक्सेल में जैसा डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, जो भी रिपोर्ट आपको चाहिए, आप खुद अपने ओन प्रैक्टिस से आप BI रिपोर्ट के थ्रू आपको पूरा रिपोर्ट टूल दिया जाएगा, तो वहां से आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अभी जो हमारा लर्निंग का प्रोग्राम है, जो ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं,
तो ट्रेनिंग हमारी 3 तरीके से होती है। एक होती है सेल्फ लर्निंग, तो हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर www.simplifypractice.com जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर हमने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस डाल के रखे हुए हैं, लर्निंग वीडियो डाल के रखे हुए हैं। देन एज वेल एज हमने यूट्यूब के ऊपर भी अपना चैनल बनाया हुआ है simplifypractice.com के नाम से, तो वहां पे भी वीडियो अवेलेबल है। देन इंस्ट्रक्टर लेड लर्निंग, तो इसमें हमने कैसा किया हुआ है कि हमारे वेबिनार कंडक्ट होते हैं, तो एवरीडे वी आर कंडक्टिंग मोर देन 3 वेबिनार स्टार्टिंग फ्रॉम 11:30 ऑनवर्ड्स। तो वो वेबिनार होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं, एवरीडे एक वेबिनार इंट्रोडक्शन का होता है, तो आप उसमें हमें ज्वाइन करिए। वहां पे हम आपको डेडिकेटेडली आप हमारे वेबिनार में ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमारी एक्सपर्ट की टीम रहती है, वो आपको पूरा सिखाएगी कि आपको कैसे यूज एंड यूटिलाइज करना है ये एप्लीकेशन। कस्टमाइज लर्निंग, अभी कई क्लाइंट ऐसे रहते हैं जो बोलते नहीं आप तो हमारे साथ ही हमारे लिए ही डेडिकेटेडली एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करो, तो ये एक पेड ट्रेनिंग होती है। तो अगर किसी कस्टमर को होल डे या 2 डे 3 डेज की ट्रेनिंग चाहिए होती है तो वो हम कस्टमाइज ट्रेनिंग उनको ऑर्गेनाइज करके देते हैं। अभी ये मोबाइल एप्लीकेशन का है जो जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो सिंप्लीफाई प्रैक्टिस का हमारा एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल ऐप भी है। ये भी आप देख रहे हो किसी यूजर का एक आईडी उसने एक्सेस किया तो सारे काम उसको सामने दिख रहे हैं कि गेट ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 17-18 ऑफ टाटा स्टील, GSTR 3B फिलिंग ऑफ वृत्ति सॉल्यूशंस लिमिटेड डिलेड। तो जहां पे डिलेड दिख रहा है वो काम डिलेड हो गया है, जो ऑन टाइम है ग्रीन कलर में दिख रहा है उसकी एंड डेट अभी बाकी है। तो ये इस तरीके से पूरा डैशबोर्ड पे दिखते रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में सामने हमको टाइम शीट भर के लेनी पड़ती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 3 मॉड्यूल है हमारे सॉफ्टवेयर में। ये डैशबोर्ड दिख रहा है, एक तरफ लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है कि एक्टिविटी स्टेटस, तो 25 एक्टिविटीज हैं, ओवरड्यू में कितनी है, कितनी कंप्लीटेड है, कितनी अनअसाइंड है। देन असाइनमेंट देखोगे तो GST 30 का एक असाइनमेंट है। देन कंकरेंट ऑडिट का एक असाइनमेंट है, असाइनमेंट PM है, पर्सनल फॉर अमय गुर्जर है। तो ये अलग अलग तरीके के जो भी आपके असाइनमेंट रहेंगे आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। देन टीम की फैसिलिटी दी गई है, तो टीम में जब आप जाके देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा कि कितने लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, उनके डैशबोर्ड पर कितना कितना काम है, ये सामने आपको दिखते रहेगा। बेसिक बिजनेस इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है कि आपकी मीटिंग है, CRM है, एडमिन मॉड्यूल है। अभी एडमिन मॉड्यूल के साथ आप क्या कर सकते हो, नया यूजर बना सकते हो, नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल अगर आपकी ब्रांचेस हैं तो वो आप डिफाइन कर सकते हो, रिसोर्स का रेट डाल सकते हो। अगर आपको पर पर्सन पर आवर बिलिंग एक्टिवेट करनी है अपने ऑफिस में तो एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन फिक्स करके रख सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर सेट कर सकते हैं, सिक्योरिटीज डाल सकते हैं कि कौन सी यूजर को कितना एक्सेस होना चाहिए, लीव मैनेजमेंट की फैसिलिटी है, और ऑफलाइन डेटा का भी है कि अगर बाय द वे आपका इंटरनेट काम नहीं कर रहा है तो उस ड्यूरेशन में अगर आपने कोई एक्टिविटी अपलोड कर दी है तो जैसे ही आपका इंटरनेट में सिस्टम आएगा या आपका मोबाइल आएगा तो डेटा इमिडिएटली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। ये सारे एडमिन पेज के रूट राइट्स हैं, एडमिन के कॉलम्स है, क्या क्या है इसमें, तो यूजर मास्टर, सपोर्ट स्टाफ मास्टर, डिपार्टमेंट मास्टर, टास्क मास्टर, ये सारी चीजें हैं। जब आप ये यूज करेंगे तो आपको इन सारी चीजों का इंपोर्टेंस पता चलेगा। फीचर ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट, तो क्रिएट असाइनमेंट, क्रिएट एक्टिविटीज, टाइम शीट फिलिंग, रिपोर्ट्स, लीव वर्कफ्लो, क्लेम्स, ये मेजरली आपको फीचर्स भी बता दिए मैंने। दिस इज द पेज ऑफ प्रैक्टिस मैनेजमेंट सिंप्लीफाई प्रैक्टिस। तो यहाँ पे मैंडेट, जब भी आपके पास कोई नया क्लाइंट आता है तो उसकी मैंडेट हम मैनेज करते हैं, बिलिंग होती है, लीव होती है, क्लेम, मीटिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारी चीजें हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, entering data of prospect client, client creation, assignment opportunity, assigning opportunity, updating existing opportunity, creating state, creating country, creating city, creating territory, creating sales family। ये CRM मॉड्यूल हमने आपको सॉफ्टवेयर के साथ दिया हुआ है। हाउ यूजर्स आर एडेड, आफ्टर गेटिंग क्रेडेंशियल वी हैव टू ऐड यूजर। तो ये आपको ट्रेनिंग मिलती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारी टीम देती है, वेबिनार भी होता है, वहां पे आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ये कोई नया यूजर ऐड करने के समय के लिए डिटेल में क्या क्या चीजें हमें डालनी पड़ती हैं, तो उसका नाम है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, ईमेल आईडी है, किस ब्रांच को ज्वाइन हो रहा है, उसकी मंथली सैलरी क्या है, पर उसके पर आवर कॉस्टिंग क्या है, ये सारी चीजें एक नया यूजर ऐड करते समय हमें डालना पड़ता है। देन CRM मॉड्यूल में क्लाइंट ऐड करना है तो CRM मॉड्यूल के थ्रू होता है। देन एक बार जहां उसका मैंडेट या ऑर्डर रिसीव हो गया देन उसके रिस्पेक्ट में हम असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये नए क्लाइंट का डेटा एंटर करने के लिए है, तो कंपनी नाम, डेटा टाइप किस टाइप के लिए है, एड्रेस, सिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन डालेंगे।
Then step 2, important multiple client data in one go. Admin module, upload offline data facility, I already told you. While importing the codes, first letter should be capital. ये सारे कुछ क्राइटेरियाज हैं जो हमें मैनेज करने हैं. असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए ये कोड डालने मिलता है, कंपनी का नाम आपको डालना पड़ता है, किस टाइप का आपका असाइनमेंट है, किस लोकेशन का है, डिपार्टमेंट, देन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट. देन एक्टिविटी क्रिएट करने के लिए ये एक्टिविटी का है, तो एक्टिविटी का हमें डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, क्या एक्टिविटी है, इसका स्टार्ट डेट क्या है, एंड डेट क्या है. ये जो यहाँ पे सिलेक्ट असाइन टू दिख रहा है, यहाँ पे आपको सारे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के नाम देखेंगे, तो किसको आपको असाइन करना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो. इवन साथ में किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए हम ये असाइन कर रहे हैं. देन ये हमारा असाइनमेंट वाइज रिव्यू है, तो यहाँ पे हमें अलग अलग क्लाइंट दिख रहा है कि एबीसीडी प्राइवेट लिमिटेड में क्या है, एडेड बाय टेक्स्ट एनवायरनमेंट का क्या है. तो ये अलग अलग क्लाइंट है, उनके सामने रिस्पेक्ट दिख रहा है. एक असाइनमेंट काम है, 2 ओवरड्यू में चल रहे हैं, 3 क्रिटिकल एक्टिविटीज बाकी हैं, 5 कंप्लीटेड हैं, 0 अनअप्रूव्ड हैं. टोटल 11 एक्टिविटीज हमने परफॉर्म की है. तो ये इस तरीके से हमको दिखता है. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेनली हम लोग फर्म नेम, एड्रेस, सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्ट, कहाँ से ये आया, हमको रेफरेंस के थ्रू आया, किसी एग्जीबिशन के थ्रू आया, ये सारा डेटा मैनेज करते हैं. असाइन अपॉर्चुनिटी इस तरीके से दिखती है. देन ये कैलेंडर व्यू रहता है, अगर आपने अपना ट्रेवल प्लान भी इसमें डाल के रखा हुआ है, असाइनमेंट के लिए आपका फिक्स है कि 1 महीने 2 महीने आपको इस क्लाइंट के यहाँ जाना है, तो आप एक सिंगल क्लिक पे यहाँ पे असाइनमेंट भी कैप्चर करके डाल के रख सकते हैं सिस्टम के साथ. तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है. ये कुछ हमारे सीए क्लाइंट्स हैं जिनकी टेस्टिमोनियल हमको मिले हुए हैं. सीए नीलेश जैन एंड एसोसिएट्स, नवी मुंबई. सीए बजरंग लाल अग्रवाल फ्रॉम बोरीवली. वे फॉरवर्ड be the number one choice for practicing CA firm by 2022, and we plan to reach out as many chapter office as many as customer across Asia Pacific region. ये हो गया हमारा सॉफ्टवेयर के बारे में. जस्ट मैं आपको क्विकली एक बार सॉफ्टवेयर का लाइव वेबसाइट का भी व्यू दिखा देता हूँ. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी सर? हेलो हेलो, नहीं, स्क्रीन अभी बंद है, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है. 1 सेकेंड. अभी दिख रही है? सिंपलीफाई प्रैक्टिस दिख रहा है ना आपको सर? हाँ जी, हाँ जी. हाँ जी, तो ये सर हमारा वेबसाइट है. अभी जितने भी लोग अभी अवेलेबल हैं सबको जैसे मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो ये आपको सिंपलीफाई प्रैक्टिस की हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे आपको ये साइन अप पे जाके क्लिक करना है. जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपको ओपन हो जाएगा जिसमें आपको रिक्वायर्ड डिटेल डालनी है. कंपनी का नाम, फुल नेम आपका, मेंबरशिप नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और ये सारी डिटेल डाल के एक ओटीपी जनरेट होता है मोबाइल पे और ईमेल आईडी के ऊपर. ये आप सबमिट कर देंगे तो हमारी टीम आपको अप्रोच कर लेगी और आप ये सॉफ्टवेयर यूज ऑल सीए फर्म फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2020 तक के लिए. अगर किसी को कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू. हेलो. Yes, yes. यस. So Anuruddh ji, there are few questions in the question tab. If you can answer them from the 1 question सेकेंड. tab.
Sujit ji, you also please answer a few of the question for you also. Sujit Roy ji. Sir, सुजीत एक क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को, मतलब मेरे लिए क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक क्वेश्चन दिखा मुझे सुजीत के लिए. please send link of प्लीज रिसेंड लिंक ऑफ सुजीत रॉय. हाँ सर, रिस्पॉन्ड कर दिया. So any members, any attendees has any question, they can post in the question tab. There are few more questions. If you can full screen now, then you can check that. Full screen of the question tab. Would like to request both. Okay. Yes. How will bulk load be support in case volume of transaction is higher? Does this product support various margin analysis? How many CA firms are using Simplify Practice? I already told you around 5,890 CA firms subscribe our software. Out of that, 50% CA firms are live. So around 3,000 customers are using Simplify Practice. As per hostbook concern, the bulk upload can be done. Volumes doesn't affect the import. And in case of cost centers is there. We are allowing cost center, and option for customer to scan. Scanning of documents is there. We can save the scanned documents and save it into cloud, and save as the attachment for that particular voucher or purchase entry. We can upload the scanning documents. If you don't have the net banking of the client, you can take the Excel file from them and upload the same in your bank account. You can do it. As I can see that net banking is issue. Otherwise, no issue. You can ask your client to get the CSV file or Excel file of the bank statement, and you can import it. It will work same. We have both the options. Masters, is there any master to create for expenses and purchase for GST? Yes, you can create masters, all similar masters. Charts of account, you can go to charts of account and create any master you wish to create. Manufacturer general, yes, it's there. Manufacturer JV can be passed. You can pass manufacturer JV, it's present. Can be restrict input eligibility based on expense type. Yes, you can restrict the input eligibility. You have the option to select the input eligibility percentage base, and also under section 75 and other ineligibility, you can check it the ITC of that thing, and you can manually go and do that things. Again, one question: ineligible credit based on notebook. Ineligible credit, you can, while putting the entry, you can select the line item where you can select that this will be ineligible, it will not be taken. Yes, we verify the GST number. It is a very good feature in our software that if you put a GST number, it has also been shown while Rakesh ji was showing. We can put the GST number and all the data, it will be fetched from the portal and verify your data beforehand you go for the working. How verification with invoice does, and does the valuation intelligence matching algorithm even if the invoice has a mismatch? Yes, sir. We have a very good AI for the matching of two-way, where you have to just download your two-way from the portal within a second, and it will auto match all the parameters, and it will show you whether it is matched or not matched. First, it will show you through a color. Where there is a match, it will show you in a green color, and where there is a mismatch, you have the option to drill down and select which out of suppose you have a client and he has given you 5 or 6 invoices. It will automatically tell you out of the 5, 3 is not matching or 2 is not matching. So it can show you like that. So the mechanism is also there. You can sort it out. You can keep pending
You can find the filters over there where you can filter the match one, semi-match, match in the values, or mismatch in values. You can find it out like this. How to bulk upload of opening balance and how to carry out audit. Bulk upload. Yes, we have the Excel template of adding the opening balance with the ledgers. We can import the Excel masters and we can create our master, and similarly we can put the opening balance and take the import of all the opening balance, and you can complete your audit based on that. Balance sheet has a good features where you can manage your lookout of the balance sheet as per your choices. You can create a separate presentable balance sheet. We have given the edit option over there, so you have the option that you can go cut, paste, write anything and change the balance sheet lookout as per your choice also. Yes, sir, I have completed the queries. Any more queries, sir? Hello. Hello, sir. I just want to address one more thing, that this software is free of cost till 30th December 2020. उसके बाद भी हमने बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट रखा हुआ है, तो 150 रुपीज, ओनली 150 रुपीज पर यूजर पर मंथ है, जिसमें क्लाउड होस्टिंग भी इंक्लूड है। और क्लाउड होस्टिंग भी हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट अजेर और AWS के सर्वर के ऊपर दे रहे हैं। तो 150 रुपीज, और वी कैन कंसीडर 5 रुपीज पर डे पर पर्सन। ये इतनी नॉमिनल कॉस्ट रखी हुई है इसकी सॉफ्टवेयर की, जो ICAI के साथ एग्रीड है, तो हम इसको इंक्रीज भी नहीं कर सकते। वी कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज मोर देन 10%। तो इस तरीके से है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज साइन अप करिए। www.simplifypractice.com वेबसाइट है, उस पर साइन अप का आइकॉन है। और जो आपको मैंने बोला था ई लर्निंग का साइट, यहाँ पे लर्निंग वीडियो में आप डेमो भी देख सकते हैं। वेबिनार का डेली का कैलेंडर भी अवेलेबल है। थैंक यू। आप लोगों के चैट बॉक्स में शेयर किया हुआ है लिंक, जिसको आप क्लिक करके अपना इंक्वायरी फिल कर सकते हैं। वी विल बी गेट बैक टू यू यूजिंग दोस लिंक्स एंड वी विल ऑफर यू आवर 25% डिस्काउंट विच इज अर्ली बर्ड डिस्काउंट। एंड CS प्रैक्टिसिंग CS के लिए या फर्म के लिए हमारा ये जो ऑफर है ऑल इन वन 3 यूजर 3 ईयर्स के लिए, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। सो प्लीज गो टू योर चैट बॉक्स, सेलेक्ट द गूगल फॉर्म लिंक एंड उसे काइंडली फिल कीजिए और हम आप तक पहुंचते हैं विदिन आफ्टर दिस सेशन। थैंक यू। Thank you so much, all the panelists, Hostbook and the Simplify Practice. Hope they can add value in your regular practice, and you with this technology you can expand your business, your practice as well. So with this word we can log off for here. We'll meet tomorrow 4:30 with two more wonderful software companies. One is ClearText and one is Geniebook. So be with us with this. Thank you so much once again. Thank you all the panelists. Thank you all Any announcement, Jeet ji or any panelist, Rakesh Kumar or Anurup ji, Amay ji? Hello, yes Anurup, I'm there. Any announcement is pending? Again share the link please in attendees chat box. Okay ji, okay. Thank you so much all. Thank you. Already, thanks a lot Viraj ji for providing us the wonderful opportunity. Looking forward a long association with you, and thanks a lot for all the attendees. We are giving you the special offer, and I also shared the link in chat box, so you just click on that and provide your detail. We will definitely treat you. Thanks a lot. Yeah, Thank you Anurup ji once again.